وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ شیطان کی ایک بڑی چاہت ہے، اس کی بڑی خواہش ہے کہ انسان کو دور کی گمراہی میں پھینک دے، انسان گمراہی میں بھٹکتا رہے، ضلالت میں بھٹکتا رہے۔ یہ شیطان کا ارادہ ہے، یہ شیطان کی چاہت ہے کہ انسان وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرے، وہ صراط مستقیم کو، سیدھی راہ کو اختیار نہ کرے۔ یہ اس کی آرزو ہے۔ آج ہم اور آپ غور کریں، پوری دنیا کے اندر آج کتنے انسان بستے ہیں؟ ایک سروے کے مطابق آج پوری دنیا کے اندر 6 ارب انسان بستے ہیں۔ 6 ارب گویا کہ یہاں آدمی ہیں، 6 ارب پوری دنیا کے اندر انسان ہیں، لیکن ان میں سے 3 ارب ایسے ہیں جو خدا کے منکر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، رب کو مانتے ہی نہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں، لا مذہب، جو رب کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رب کچھ نہیں ہے۔ گویا کہ 3 ارب دنیا کے اندر ایسے ہیں جو رب کو مانتے ہی نہیں۔ اب باقی بچے 3 ارب۔ 3 ارب کے اندر جو رب کو ماننے والے ہیں، 2 ارب ایسے ہیں، 2 ارب ایسے ہیں جو رب کو تو مانتے ہیں لیکن دوسرے ادیان میں مانتے ہیں، دوسرے مذہبوں میں مانتے ہیں۔ مثلا دنیا کی ایک اکثریت عیسائی ہے، جو رب کے ماننے والے ہیں، رب کو تو مانتے ہیں لیکن عیسائی ہیں۔ دوسری قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو رب کو مانتے ہیں، وہ یہود کہلاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اسلام آنے کے بعد پچھلے سارے مذاہب کی تعلیمات وہ ختم ہو گئے، اور جو بھی عیسائی ہو، یہودی ہو، دوسرے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اسے اسلام قبول کرنا ضروری ہے۔ اور رب کے نزدیک نہ تو اب عیسائی مذہب قبول ہوگا، نہ تو یہودی کا مذہب قبول ہوگا، نہ تو اہل حدود کا مذہب قبول ہوگا، نہ تو مجوسی کا مذہب قبول ہوگا۔ گویا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، کسی بھی مذہب کو اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں، اللہ کے نزدیک منتخب نہیں۔ اگر مذہب ایک پسند ہے تو وہ ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک ایک ہی مذہب بچا ہے، وہ ہے اسلام۔ اب غور کریں، دنیا کے اندر 6 ارب انسانوں میں سے 3 ارب جو رب کو مانتے ہی نہیں، 2 ارب ایسے ہیں جو غیر مذہب میں مانتے ہیں، اور 1 ارب جو رب کو مانتے ہیں۔ اس میں سے 50 کروڑ ایسے ملیں گے جو رب کو مانتے ہیں، رب کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن وہ بھی شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے۔ اور اب 50 کروڑ جو بچے، ان 50 کروڑ کے اندر بھی اگر آپ ٹٹولیں گے، آپ غور کریں گے، صحیح توحید کے ماننے والے آپ کو اگر آپ اس میں سے ایک کریں گے، یعنی کیلکولیٹر سے نکالیں گے، تو یا تو 20 کروڑ ملیں گے، زیادہ سے زیادہ 20 کروڑ بھی ملنا مشکل ہے۔ تو آپ غور کیجئے، شیطان
अपने इरादे में कामयाब है कि नहीं। शैतान का जो इरादा था कि इंसान को हम गुमराह करेंगे, खुली गुमराही के उसने चैलेंज दिया है कि हम इंसान को गुमराह करके रहेंगे, औलाद आदम की औलाद को हम गुमराह करके रहेंगे। आज देखिए उन्होंने अक्सरियत को गुमराह कर रखा है। एक चाहत में, एक ख्वाहिश, एक तमन्ना जो उसने ये दे रखा था, उसमें वो हर दर्जा कामयाब नजर आ रहा। आइए मजीद उसकी चाहत क्या है, शैतान की चाहत क्या है, शैतान चाहता क्या है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसारु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। बेशक इन्नमल खमर, शराब और जुआ और बुत, हाँ, और इसी तरह पासे के जरिए से, पासे के तीर के जरिए से तकसीम करना, ये शैतानी अमल है। फज्तनिबूहु, इससे बचा करो, इससे दूर रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। इसके अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहले शराब के बारे में बताया, उसके बाद दूसरे नंबर पर जुआ के बारे में, कि शराब और जुआ ये क्या है, शैतानी अमल है। गोया कि ये नजिस नापाक है, रिज्सुम मिन अमल शैतान का, कि नापाक है, रिज्स से है, गंदी है, इससे दूर रहा करो। आज एक अक्सरियत, इंसानों की अक्सरियत शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और एक अक्सरियत खानों में जाकर बैठे रहते हैं। और कुछ लोगों का अकीदा है कि अगर रास्ते में बिल्ली आ जाए तो रास्ता हमारे खराब, सफर हमारा खराब हो गया। इस तरह की अकीदा है। कोई भी परिंदा को देख लिए तो अकीदा खराब है कि हमारे यहाँ नुकसान की खबर लेके आ रहा है। चारों को अल्लाह ताला ने शैतानी अमल करार दिया है, उससे बाज रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शैतान क्या चाहता है, युरीदु शैतान अन युक़िया बैनकुम अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर। शैतान का इरादा है, मज़ीद उसका इरादा क्या है, अल्लाह ताला बयान करता है कि शैतान चाहता है कि तुम्हारे अंदर अदावत और दुश्मनी को फैलाए, फरोग दे। इसके जरिए से, शराब और जुए के जरिए से। अल्लाह ताला फरमाता है इसके जरिए से तुम्हारे अंदर दुश्मनी को फैलाना चाह रहा है। और क्या करना चाहता है, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। और तुमको रोकना चाहता है, किससे, नमाज पढ़ने से, अल्लाह के जिक्र करने से और नमाज पढ़ने से। फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम लोग बाज आओगे, क्या तुम लोग परहेज करोगे, बचोगे। आइए गौर कीजिए, इसके अंदर शराब और जुआ को अल्लाह ताला ने शैतानी अमल करा दिया। इसी तरह शैतान का इरादा क्या, शैतान की चाहत, ये तमन्ना, ये आरज़ू बतलाया गया कि शैतान चाहता है कि तुमको अल्लाह ताला के जिक्र से रोके और तुमको नमाज पढ़ने से रोके। मैंने गुज़िश्ता खुतबे के अंदर कहा था कि आपने अगर रमज़ान के रोज़े रखे और रमज़ान के रोज़े रखने के बाद आप नमाज जिस तरह रमज़ान में पढ़े उसी तरह अगर कंटिन्यू आपने जारी रखा तो ये आपके रोज़े मकबूल हुए। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे, चाहे मौलवी तबका हो,
मास्टर तबका हो, बिजनेस करने वाले, पढ़े लिखे अच्छे समझदार, अजान हो रही है, मस्जिद के चारों तरफ दुकानें हैं, लेकिन शैतान ने उसको ऐसा बहका रखा है, ऐसा गुमराह करके रखा है कि वो माल माल के पीछे में पड़ा हुआ है। कितने मर्तबा अजान की सदाएं उनके कान में गूंजती है, नमाज के लिए नहीं आते। कामयाब है कि नहीं शैतान? वयसुद्दक मन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। अल्लाह ताला फरमाता है शैतान का इरादा है कि तुमको अल्लाह ताला के जिक्र से और नमाज से रोके। शैतान कामयाब हो चुका है। आज इंसान रब के बंदे बनने के बजाय शैतान का बंदा बना हुआ है, और ये बंदा जब बन गया तो शैतान के इल्का के मुताबिक, गोया कि उसके वसवसा जो है वो इल्का है, वो जो चाहता है शैतान, जो उसमें उसके दिल में डालता है उसके मुताबिक वो अमल कर रहा है। क्या अमल कर रहा है? शैतान उसको ये हुक्म दे रहा है, वयअमुरुकुम बिल फक्र। शैतान उसको फक्र के बारे में हुक्म देता है कि देखो अगर तुम नमाज के लिए गए तो तुम फक्र व फाका में मुब्तला हो जाओगे। और इसी तरह अल्लाह ताला और एक जगह इरशाद फरमाता है, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है? शैतान तुमको हुक्म देता है, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, सू बुराई का और फहश गलतकारी करने का, गलत बयानी करने का, फहश गंदी ज़बान इस्तेमाल करने का, ये शैतान तुमको हुक्म देता है। और तुम रब के बारे में ऐसे कलिमात कहो, अन तक़ूलू अल्लाह मा ला तालमून, जिसके बारे में तुझे इल्म ना हो। आज रब के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह जाते हैं। मसलन आज रात में बारिश हुई, बहुत सारे लोगों की ज़बान में इस तरह के कलिमात आपने सुना होगा, नौज़ुबिल्लाह रब कितना बड़ा जालिम है, इतने मकई सबके खेत में खलिहान में पड़े हुए सबको भिगा दिया। इस तरह भी कहने वाले बहुत सारे हैं। रब को ये नहीं कि किसका मकई सूखा किसका सूखा नहीं। बंदे रब को जालिम करार दे रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जबकि रब का फरमान है वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मैं अपने बंदे के ऊपर जुल्म करने वाला नहीं। अगर इस तरह कोई बंदा कलिमात निकालता है कि मेरे रब ने मेरे साथ गलत सलूक किया है, मेरे साथ रब ने ज्यादती की है, मेरे मक्के को, मेरे फला फसल को तबाह कर दिया है, आंधी भेजकर हो या दूसरे तरीके से, तो रब ने नाइंसाफी नहीं किया। इस बात को आप जान लीजिए, रब ने नाइंसाफी नहीं किया। ये बातें जो आप कह रहे हैं शैतानी बातें हैं। रब का फरमान है जो भी अजाब आते हैं, जो भी आजमाइश आते हैं, ये तुम्हारे अमाल की वजह से आते हैं। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, जहाँ भी जो भी अल्लाह की तरफ से अजाब आए हैं, ये तुम्हारे बद आमालियों का नतीजा है। तुम्हारे बद आमाल जो तुमने बदी की है उसका ये नतीजा है।